And welcome our guest expert. Good morning, everyone. Good morning, Alicia ma'am. On the behalf of our college and the department, I welcome you at this lecture session. I hope मेरे बच्चों को ये बहुत अच्छी तरीके से benefit करेगा मैम. Thank you so much for joining us. And children are joining right now. Possibly there will be 80 plus students in this session. They are joining. They are facing some network glitch. Therefore, they are just program is just delayed. I'm sorry for that. You can continue, ma'am. I'm asking children to join All right, as ma'am. soon as possible. Thank you so much, ma'am. Thank you so And we are much. waiting कि हमें कुछ ऐसे आइडियाज मिले जिसको हम कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट कर सके और उनके लिए बेनिफिशियल हो, जो पेरेंट्स हैं या स्पेशल नीड प्रॉब्लम्स में जो लोग हैं या उनके पेरेंट्स हैं या कम्युनिटी के लोग हैं, उनको हम अवेयर कर सकें आपके थ्रू. Right. थैंक यू सो मच मैम. यू कैन ज्वाइन स्टार्ट सेशन. थैंक यू मैम. All right. Give me just 2 minutes. I'll be starting my session. श्योर मैम. All right. A very good morning to all. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning, ma'am. Good morning. Good So morning, I'll, ma'am. I'll be starting my Good session. morning. Shall I? Yes, ma'am. Please, you can start session. First of all, I just want to share that every time I give a workshop on or session about diversity, inclusion, or we speak about children with special needs, especially, I feel grateful. The reason is that the time we speak about inclusion or inclusive education, we somewhere spread and put a inclusive mindset out there. We pass an inclusive mindset, inclusive environment around us, and altogether we somehow manage to create an collaborative community which inculcates a generation and passes a generation of inclusiveness. From that sort, I am starting my session on. I'll be talking about physical disabilities and speech disorders, as well as how to manage and what are the causes that leads to any sort of disability. So my first, I hope parents are also there by now. Ma'am, they are joining. One of the parents who was facing such problems, so they will be Right. joining soon the session. So, And either if they are not there, our students who are working with them, hmm, they will ask questions on their behalf. all right, ma'am. But And then the I whole would. session is recording, so yeah, it will reach out to them. All right, all right. So I am starting my session now. Expectations. एक्सपेक्टेशन को हिंदी में अपेक्षाएं कहते हैं, अपेक्षा कहते हैं. एक्सपेक्टेशन और एक पेरेंट का बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है. वाई? बिकॉज जब अ चाइल्ड इज़ नॉट इवन बॉर्न, एक पेरेंट बहुत सारे ड्रीम्स, होप्स एंड अपेक्षाएं लगाता है अपने बच्चे के लिए या बच्चे के लिए. मगर जब वो पेरेंट ऑब्जर्व करता है, नोटिस करता है कि मेरा बच्चा तो बाकी बच्चों की तरह घुल मिल ही नहीं रहा है, हंस नहीं रहा है, या फिर सोशल स्माइल नहीं दे पा रहा है, या फिर अपने हेड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या फिर ही इज़ नॉट एबल टू वॉक और सिट विथ और विदाउट सपोर्ट एंड थिंग्स लाइक दैट, नॉट एबल टू सी, ऐसा लगता है कि हमारी बात को अनदेखा कर देता है, या हम उसे उसके नाम से बुलाते हैं तो वो हमको सुनता नहीं है. 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड सेंटेंसेस, या बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा है. तब उस पेरेंट को झटका लगता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं थोड़ी बिखरने लगती हैं. एंड देन एक बहुत अच्छी कहावत आती है कि व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर इज़ अ सोल्यूशन टू इट. अगर Yes. इस एक चैलेंजिंग सिचुएशन एक इंसान की लाइफ में आती है तो उसके साथ एक सोल्यूशन डेफिनेटली होता है. टुडे we'll be talking about the challenges that parent faces for the child of special needs, and what are the possible preventions and possible interventions for the same. बट सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए एक पेरेंट बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है, एंड दैट स्टेजेस आर इमोशनल स्टेजेस. डिनाइल, एंजाइटी, फियर,
डिप्रेशन, गिल्ट एंड एंगर. जब एक पेरेंट को डिस्कवर होता है दैट हिज चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, जो एक माइलस्टोन होता है, हंसना, बैठना, बोलना या अपने हेड को कंट्रोल करना, ये जो माइलस्टोन्स हैं उसे वो कवर नहीं कर पा रहा है, तो पेरेंट को शॉक लगता है. पहला रिएक्शन शॉक का होता है. एंड मदर कहती हैं कि कर लेगा, कोई बात नहीं, एक साल 2 साल कर लेगा, और वो डिले होता जाता है ओवर द ईयर्स. देन कम्स एंजाइटी. अब एंजाइटी कब आती है? जब बाकी फैमिली मेम्बर्स या कोई रिलेटिव्स आते Excuse me, ma'am. यस Ma'am, your mic is मैम, mute. आपका माइक शायद म्यूट हो गया है. Yes, ma'am. नॉट एबल टू हियर यू. ऑल राइट. एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, ma'am. Yes, I'm ma'am. really sorry. So I was at anxiety, I believe. Yes, ma'am. All right. Anxiety comes when a family member or society pinpoints to the child कि ये बोल नहीं रहा है अभी तक, ये चल क्यों नहीं पा रहा है, तो 2 साल का हो गया, अब तो उसे बोलना चाहिए, चलना चाहिए. तब एंजाइटी आती है पेरेंट के अंदर कि ये क्यों नहीं बोल रहा है, ऐसा क्या हो गया है, बोल क्यों नहीं रहा है, चल क्यों नहीं रहा है ये. और वो एंजाइटी ऑटोमेटिकली डर में बदलता है, घबराहट डर में चेंज होता है. और उस डर में पेरेंट, लाइव एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, फियर में पेरेंट अंधविश्वास, झाड़ फूक, पूजा पाठ, इन सब में एक होप ढूंढता है. लेकिन जब वहाँ पे भी होप नहीं मिलती है तो वो पेरेंट की होप टूटती है, वो डिप्रेसिव स्टेट में जाता है. एंड डिप्रेसिव स्टेट में जो मैरिटल हार्मनी है हस्बैंड वाइफ की, वो डिस्टर्ब होती है. फैमिली में एक नेगेटिव एनवायरनमेंट आता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं फैमिली में. मदर का टूवर्ड्स हर चाइल्ड वो एक रिलेशनशिप है, हेल्दी रिलेशनशिप है. ओवरऑल इफ़ वी सी फैमिली का एक जो मेंटल स्टेट है वो कहीं ना कहीं डिप्रेसिव हो जाती है. दैट लीड्स टू गिल्ट. अब हमारे इंडियन सोसाइटी में इट्स वेरी कॉमन कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, एकेडमिक्स को लेकर हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तो इट्स अ टैग लाइन दैट मदर ने ही ध्यान नहीं रखा है. तो अगर डिस्कवर हो कि दैट चाइल्ड इज़ हैविंग डिसेबिलिटी, तो सोचिए एक मदर के ऊपर कितना बड़ा गिल्ट सोसाइटी या फिर अदरवाइज मदर अब खुद पे ले लेती है. दैट शायद मेरी ही लापरवाही है कि मैंने शायद ढंग से ध्यान नहीं रखा, या फिर मैंने कोई लापरवाही की है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एंड वो गिल्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि मदर खुद को ही कोसने लगती है, खुद ही एक स्ट्रेस एंजाइटी में शी लिव्स इन. एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू एंगर, चिड़चिड़ा रहना पेरेंट का या मदर का टुवर्ड्स हर चाइल्ड कि कर क्यों नहीं रहा है, गुस्से में ज़बरदस्ती चलवाना, या यू नो ऑल ऑफ दीज. जहाँ पे हैम्पर होती है डिसेबिलिटी, वहाँ पे एग्रेशन निकलता है पेरेंट का. इसके बाद वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस. पेरेंट के पास 2 ऑप्शन ही रहते हैं, या तो वो इसी साइकिल में वो घूमते रहें, या फिर इससे बाहर निकलें और एक्सेप्ट करें, स्वीकारें अपनी सिचुएशन को, दैट येस माई चाइल्ड इज़ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस, आई एक्सेप्ट दैट, लेकिन आई नीड टू वर्क ऑन इट. एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सोल्यूशन तक पहुंचना है. आप सोल्यूशन तक पहुंच गए, एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि जब एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तब भी आप कुछ ना कुछ ढूंढते रहोगे कि ये कर नहीं पा रहा है, वो ओटी में जा रहा है तब भी नहीं कर पा रहा है. एक एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा कि इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड इट विल टेक टाइम ग्रेजुअली. नाउ टॉकिंग अबाउट शारीरिक विकलांगता, फिजिकल डिसेबिलिटी. फिजिकल डिसेबिलिटी इज़ अ कंडीशन, एक कंडीशन है जहाँ पे एक बच्चे की या फिर एक पर्सन की डे टू डे एक्टिविटीज़ हैम्पर होती है. इट इम्पेड्स, या तो वो वॉकिंग हो, क्लाइंबिंग द स्टेयर्स हो, या कोई सामान को इस टेबल से उस टेबल तक पहुँचने का कोई सामान लाना हो. ये जो डेली कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं वो समवेयर लिमिटेशन आ जाती है वहाँ पे. अकॉर्डिंग टू RPWD, राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, उन्होंने कहा कि फ़िज़िकल डिसेबिलिटी एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है, और इस फिज़िकल डिसेबिलिटी के अंदर टाइप्स एंड सब टाइप्स हैं. सबसे पहला है लोकोमोटर डिसेबिलिटी.
लोकोमोटर डिसेबिलिटी में बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ आती हैं. फॉर एग्जाम्पल लिप्रिसिक्योट. लिप्रिसिक्योट एक स्किन डिजीज़ है जिसकी अब वैक्सीनेशन आ गई है, तो आमतौर पे हमें वो चीज़ अब नहीं दिखती है. सेबल पाल्सी, इट इज़ अ कंजेनिटल कंडीशन जहाँ पे हमारी मसल टोन, मूवमेंट, हमारा पोस्चर अफेक्ट होता है. ड्रॉफिज्म इज़ अ मेडिकल कंडीशन एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज़ अ फॉल्टी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, जहाँ हमारे मसल लॉस हो जाता है, मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं, और इसके अदर टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिवेरिटी. देन एसिड अटैक विक्टिम्स, आफ्टर द एसिड अटैक विक्टिम के फॉर एग्जांपल अगर आँख में है तो ब्लाइंडनेस हो सकता है, या विजन चला जाए, या फिर ईयर का हो, तो इट डिपेंड्स. Then comes spina bifida. Spina bifida it can be caused by many factors like genetic हो गया, या फिर folic acid, विटामिन B9 मदर ने कंज्यूम नहीं किया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो many factors are there which leads, जब फीटस, ये तब होता है जब फीटस मतलब इसका जो कॉज है ये है कि फीटस का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डेवलप नहीं हो पाता है सही से. देन कम्स विजुअल इम्पेयरमेंट. विजुअल इम्पेयरमेंट में ब्लाइंडनेस एंड लो विजन आता है. ब्लाइंडनेस इज कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन, एंड लो विजन इज इट कांट बी क्योर्ड विथ सर्जरी और विथ medicine or with glasses. It is a low vision factor. Then comes hearing impairment. Hearing impairment में deaf is something a person who cannot hear, मतलब उसको बिल्कुल ही complete loss है. हार्ड ऑफ हियरिंग में है कि देर आर सम सॉर्ट ऑफ हियरिंग DB इज़ देयर, एंड DB में यू कैन यूज़ असिस्टिव डिवाइसेस, और यू कैन यूज़ कोक्लियल इम्प्लांट और हियरिंग एड. देर आर चांसेस ऑफ इट. देन कम्स स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में. सो दीज आर इन होल सम फिजिकल डिसेबिलिटीज़. एंड इन फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ ये कहाँ से आती है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, अगर सेरेब्रल पाल्सी हुआ है बच्चे को, ये कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आ सकता है कहाँ से. नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. सो एक डिसेबिलिटी के 3 स्टेज होते हैं. एक डिसेबिलिटी या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, वो डेवलप हो सकती है, या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी नियोनेटल वो डेवलप हो सकती है, या फिर पोस्टनेटल जन्म के बाद. तो ये 3 स्टेजेस होते हैं जहाँ पे एक डिसेबिलिटी डेवलप होने के चांसेस होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे बच्चे को डिसेबिलिटी है, लेकिन पेरेंट कभी कभी ये डिस्कवर नहीं करते हैं कि ये आई कहाँ से है. ये हो गई है, ठीक है, अब क्या करना है, ये सभी क्वेश्चन रहता है. बट वी आर इन अ डिजिटल वर्ल्ड, हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट कि मेरे बेटे को, मेरी बच्ची को ये डिसेबिलिटी आई कहाँ से, सो दैट वी कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सेकेंड चाइल्ड. पेरेंट्स हु आर प्लानिंग फॉर सेकेंड चाइल्ड, already having a child with disability, you have to be very cautious about the disabilities that can cause during pregnancy, after pregnancy, or during delivery. First of all, any disability or some disability can be caused by genetically वो pass on होती है. Secondly, parent का lifestyle बहुत important है for the development of the child. देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक इन्फेक्शन है टॉर्च, जो समवेयर, अगर टॉर्च के बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल HIV एड्स, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, हर्पीज़ एंड रुबेला, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. अगर उनमें से कोई इन्फेक्शन फीटस में हुआ है तो बच्चे का हार्ट डिफेक्ट होगा, बच्चे का हेड स्मॉल होगा, या उसकी वजह से बच्चे की आंखें छोटी हो सकती हैं. यहाँ पे आप डायग्राम अगर देख पाएँ तो यहाँ पे बहुत सारे आफ्टर कॉज बच्चे में नज़र आएंगे. तो इसकी वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. टाइम टू टाइम चेकअप करना डॉक्टर के साथ या फिर फैमिली डॉक्टर के साथ, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. देन कम्स, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दी मदर्स टू अंडरस्टैंड स्पेशली दैट प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको अपने न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है. एंड
न्यूट्रिशन की वजह से आपके बच्चे का डेवलपमेंट डिसाइड होता है। आप अगर लेफ़्ट साइड में देखें तो देयर इज़ डैमेज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बच्चे को न्यूट्रिशन, ब्लड एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और जब प्लेसेंटा डैमेज होता है, उसके कॉजेज़ हैं पुअर न्यूट्रिशन हो गया या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो गया मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी वजह से जो बच्चा है उसको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। और अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो बच्चे को ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन जब प्लेसेंटा डैमेज होता है, या तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी या एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगी, तो समझ जाइएगा यू हैव प्लेसेंटा डैमेज। देन कम्स दी पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन में अगर आप अच्छी डाइट लेंगे, आप जंक फूड अवॉइड करेंगे, और आई नो क्रेविंग्स होती हैं, बट बैलेंसिंग योर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। इसकी वजह से लैक ऑफ पुअर न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे का जो वेट है दैट विल बी लो, प्रीमेच्योर बेबी होने के चांसेस इंक्रीजेस, और ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आता है आफ्टरवर्ड्स, एंड मेनी कॉम्प्लिकेशंस आर देयर in between. Then comes maternal diabetes. Diabetes is a biggest cause of a baby having low birth weight and high मतलब ज़्यादा birth weight भी हो सकता है, low भी हो सकता है, and many disabilities can also be there in relation to diabetes. So अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और एज आई सेड time to time interval checkup is very important. Then high blood pressure can affect oxygen level to child, जो automatically affects the brain of the child, fetus. RH incompatibility का मतलब है कि जो मदर का जो ब्लड वो है, ब्लड ग्रुप है, बच्चे से, फीटस से नहीं मैच हो रहा है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्योंकि जो मदर का ब्लड है वो बच्चे के जो ब्लड को डैमेज करता है, उनके आरबीसी को डैमेज करता है। प्रीमेच्योरिटी होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो अगर प्रीमेच्योर बच्चा हो जाता है तो उसके आफ्टरवर्ड्स इफेक्ट्स, जॉन्डिस हो गया बच्चे को, या फिर मदर को जॉन्डिस है तो डिलीवरी के टाइम बच्चे को भी जॉन्डिस हो गया, ये कुछ चीज़ें होती हैं। देन प्रेगनेंसी के दौरान लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जैसे मैंने कहा ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, आपका बहुत हाई ब्लड प्रेशर है और जिसकी वजह से बच्चे को ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो अपना ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखिएगा। देन नियोनेटल इज़ डिलीवरी के टाइम आप जो बच्चे का जो पोस्चर है, पोजीशन है बच्चे की, वो डिसाइड करता है कि बच्चे का कैसा ग्रोथ होगा। फॉर एग्जांपल आई टेल यू, ये जो आप लास्ट पिक्चर देख रहे हैं बच्चे की शोल्डर पोजीशन में बच्चा है, इट इज़ अ वेरी पेनफुल डिलीवरी, बहुत ही लंबी डिलीवरी होती है, प्रोलॉन्ग्ड होता है और बहुत ही पेनफुल होती है। इसमें मदर और बच्चे के जो लाइफ रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड ब्राउ पोजीशन इज़ ऑल्सो समथिंग जहाँ पे कभी कभी होता है कि बच्चे का गला चोक हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं जा पाती है ब्रेन में। तो कुछ पोजीशंस हैं जिसकी वजह से भी डिसेबिलिटी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन कम एस्फेजिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग डिलीवरी, ऑक्सीजन अगर किसी कारण नहीं मिल पाया बच्चे को, बहुत सिवियर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, उसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी, एपिलेप्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड व्हाट एल्स, डेवलपमेंट डिलेज आफ्टरवर्ड्स, जो माइलस्टोन्स मैंने आपको बताया वो डिले होने के चांसेस बढ़ते हैं। देन दिस कॉर्ड प्रोलैप्स, ये जो एम्बिकल कॉर्ड होता है वो बाहर आ जाता है, बिकॉज वो खिंच जाती है, नाभि हम बोलते हैं, नाभि वो खिंच जाती है, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट कॉज। अब हम बात करते हैं जन्म के बाद। ये तो हमने बात करी प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग डिलीवरी कैसे कैसे होता है। अब हम बात करते हैं क्रूशली कि जन्म के बाद पेरेंट को कैसे ध्यान देना है, या फिर क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डिसेबिलिटी को लीड करते हैं। एंसेफेलाइटिस, अब हाई फीवर कहते हैं ना कि बहुत ही हाई फीवर हो गया बच्चे को, 5 साल तक अगर बच्चे को हाई फीवर हो जाए तो बहुत सारे कॉजेज़ बढ़ जाते हैं।
इसलिए कहा जाता है कि 5 साल तक बच्चे का ध्यान रखिए, न्यूट्रिशन दीजिए हर चीज़ में, क्योंकि हाई फीवर कैन कॉज ब्रेन डैमेज, ब्रेन हैमरेज, और बच्चे का जो डायरिया हो जाता है, बच्चे को वॉमिटिंग हो जाता है, वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है फॉर द डेवलपमेंट आगे बढ़कर। बिकॉज ये अभी बच्चे को अगर मान लीजिए चोट लग गई दिमाग में या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, तो समवेयर इट विल अफेक्ट चाइल्ड्स कॉग्निटिव पार्ट और ब्रेन, उसको सीपी भी हो सकता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं मैं देखती हूँ यूजुअली पेरेंट्स। आई टेल यू लाइव एग्जांपल, 6 महीने का बच्चा होगा हार्डली, 2 साल का भी नहीं, 1 साल का भी नहीं, 6 महीने का हार्डली बच्चा होगा। दे हैव विजिटेड टू अ पार्टी और बहुत लाउड म्यूज़िक है वहाँ पे, एंड बच्चे को वो डांस करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब स्पीकर यहाँ है, आप मानिए स्पीकर इज़ हेयर एंड द चाइल्ड इज़, पेरेंट इज़ डांसिंग विद द चाइल्ड। उस बच्चे के कानों पर, दिमाग पर कितना इफेक्ट पड़ेगा उसे आप सोच भी नहीं सकते। दैट कैन लीड टू हियरिंग इम्पेयरमेंट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हम अपने इंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि हम डेवलप हो चुके हैं, लेकिन बच्चा इज़ इन अ डेवलपिंग पीरियड। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आई थिंक अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट कर ले, तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर प्रिवेंशन। देन कम्स सीजर्स, फिट्स पड़ना, दौरे पड़ना। दौरे पड़ते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा लर्निंग है, बच्चे का जो ब्रेन है बहुत पीछे चला जाता है। इसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, मेमोरी, रीजनिंग, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स एंड एवरीथिंग। ये अब हमने बात कर ली कि क्या क्या कॉज है इसके डिसेबिलिटी के। अब बात करना है जब हमको पता चल गया है कि यस दीज आर सम कॉजेज़, इसकी वजह से डिसेबिलिटी आई है, अब करना क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ पेरेंट। सबसे पहले हमको एक ऐसी अप्रोच रखनी है कि जैसे ही पता चले कि डॉक्टर ने कहा है कि इसको इस वजह से ही हुआ है, इसको मान लीजिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है बच्चे को, हमको सबसे पहले अपना फ़ोन उठाना है और उसके बारे में डिटेल्ड पढ़ना है। हमने पढ़ा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहाँ से आई है, क्या होता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आपको एज अ पेरेंट अवेयर होना उस डिसेबिलिटी के बारे में बहुत ज़रूरी है। कोई आपको बताए उससे पहले आपको खुद जानना है, एक्सेप्टेंस लानी है जानने के बाद, ठीक है कुछ काम करते हैं इस पर, कोई बात नहीं, भगवान ने शायद मुझे चैलेंजेस दिए हैं, आई एम अ स्पेशल पेरेंट, लेट्स वर्क ऑन इट। देन सोशल एक्शन लेना है, ढूंढना है आसपास, बात करनी है कि सेरेब्रल पाल्सी या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। फॉर एग्जांपल अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैसे करवाना है, असेसमेंट कैसे करवाना है, या फिर मुझे अपने बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी देनी है, कहाँ से देनी है, जो मेरे बच्चे के लिए सूटेबल है, उसके लिए हमें आप तैयार करना है अपने आप को और अपने बच्चे को। अगर आपको दिखे, क्योंकि आप अब तक इतने वेल प्रिपेयर्ड हो गए हो कि यस मुझे यहाँ पर जाना है सर्विसेज देने, मुझे वहाँ जाना है स्पीच के लिए, मुझे यहाँ जाना है फिजियोथेरेपी के लिए, वहाँ पे आपको इन तीनों जगह पे अगर कोई पेरेंट दिख रहा है विथ अ डिसेबल चाइल्ड, आप उसे अवेयर करिए। बिकॉज आई टेल यू, आप जब किसी को अपनी स्टोरी बताते हैं, अपने स्ट्रगल्स बताते हैं एज अ स्पेशल पेरेंट, सामने वाले पेरेंट को भी हिम्मत आती है। बिकॉज वी डोंट नो कि सामने वाला पेरेंट भी किस स्ट्रगल से गुजर रहा है, लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, व्हेन वी शेयर आवर स्टोरी टू अदर पेरेंट, वो भी समवेयर हील होता है और उन्हें बताकर हम हील होते हैं। तो वी हैव टू कम अप विद अ कोलैबोरेटिव कम्युनिटी टुगेदर। एंड देन कम्स स्ट्रेस। अब स्ट्रेस हैंडल करना, आई विल नॉट से कि स्ट्रेस चला जाता है, बट एक स्पेशल पेरेंट और बच्चे की लाइफ में हमेशा वो स्ट्रेस बना रहता है, क्योंकि हम स्ट्रगल करते हैं उन्हें एक एडियल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और जब तक उन्हें प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो प्रोसेस इतना स्लो होता है, और भी फैक्टर्स होते हैं, फैमिली प्रेशर होता है, तो हमारा स्ट्रेस कहीं ना कहीं बिगड़ा ही रहता है या फिर रहता ही है हमारे पास। देन टॉकिंग अबाउट एटीट्यूड ऑफ फैमिली, द बर्थ and the discovery of disability affects every family member directly और indirectly। अब एक जन्म बच्चे का जब होता है विद डिसेबिलिटी, तो वो उसके भाई बहन को भी अफेक्ट करता है बच्चे के,
उसके मदर फादर को इफेक्ट करता है, दादी दादा नानी चाचा सबको इफेक्ट करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन जब पता चलता है दैट इज़ ओके, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन और जो एटीट्यूड होता है फैमिली का, दैट डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। बहुत नैरो माइंडेड सोच है फैमिली की, चाचा की, दादी की, और हमेशा ताने मारना, तो वो एक ग्रोथ माइंडसेट नहीं डेवलप करता है पेरेंट में और बच्चे में। तो जब आप उस एज अ पेरेंट एक्सेप्ट कर लेते हो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने बच्चे के दादी दादा या जो रिलेटिव्स हैं उन्हें भी अवेयर करें कि कोई बात नहीं, ऐसा चैलेंजेस हैं, ये इसमें ऐसा ऐसा होता है और ऐसे से इसके प्रिकॉशंस हैं, हम वी आर डूइंग अ पार्ट। जस्ट लाइक हमें अगर डायबिटीज़ होता है या हमको अगर हेडेक है, बहुत कोल्ड है हमें, तो हम डॉक्टर पे नहीं जाते हैं, हम तो डॉक्टर पे ही जाते हैं। हम बोलते हैं कि क्या दवाइयाँ हैं इसकी, हमें ज़रा दवाइयाँ बताओ, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट। हमें कुछ डायग्नोस हुआ है मेरे बच्चे को, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सर्विसेज करवा रहे हैं, दैट्स इट। इट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ, जस्ट लाइक नॉर्मल हेडेक, नॉर्मल कोल्ड। वैसे ही ये एक डिसेबिलिटी है जहाँ पे मुझे अपने बच्चे के साथ काम करना है। आपको अपनी फैमिली को भी अवेयर करना है साथ साथ, ताकि आपकी फैमिली अवेयर हो, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आए घर में कि ठीक है, ओके वी अंडरस्टूड, इफ़ वी हमें समझ भी नहीं आ रहा लेकिन वी आर विथ यू। धीरे धीरे ट्राई करने से हम एक कोलैबोरेटिव कम्युनिटी बना पाएंगे। देन कम्स एटीट्यूड ऑफ कम्युनिटी। फ्रॉम गॉड ग्रेस हमारे पास पॉलिसीज़ हैं, एक्ट्स हैं और स्कीम्स हैं जहाँ पर हम काम कर, जहाँ जिसके थ्रू हमने एक इंक्लूसिव एजुकेशन क्रिएट किया है। और इन नाउ एवरी स्कूल वी हैव ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। बट आई बिलीव देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस स्टिल लेफ्ट। थोड़ा सा अवेयरनेस अभी भी देना बाकी है, और अभी भी मुझे लगता है कि मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस को एक ही माना जाता है, बल्कि ये दोनों अलग अलग हैं। एंड जब एक स्कूल एक बच्चे को, स्पेशल बच्चे को एडमिट करता है स्कूल में, उस स्कूल का और उस टीचर का इंक्लूसिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में एक लॉ है कि इंक्लूसिव एजुकेशन है, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी है, वहाँ तक बात नहीं बनती है। उस स्कूल को, उस टीचर को अपने अंदर इंक्लूसिव माइंडसेट बिठाना बहुत ज़रूरी है कि एक स्टिग्मा नहीं बनना चाहिए कि अच्छा पॉलिसीज़ है चलो लेना ही पड़ेगा, अब तो नहीं। अब बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, और एज अ कम्युनिटी ऑल्सो वी शुड एक्सेप्ट every person irrespective of their disability, caste, religion, color, sex, nothing should be a barrier to it. और अगर मैं स्कूल की बात करूँ, स्पेशली स्कूल में बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बच्चे को फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वहाँ पर रैम्प होना ज़रूरी है। इट्स अ प्रॉपर पॉलिसी, आपको रैम्प देना पड़ेगा, आपको फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी बच्चे को। स्कूल को बच्चे के लिए चेंज होना पड़ेगा, बच्चा स्कूल के लिए चेंज नहीं होगा। School have to make some policies and some sort of interventions जहाँ पे बच्चे को benefit हो। A proper special educator should be there, proper curriculum modification should be there। वो एक special educator बच्चे के नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई करेगी, करिकुलम हो गया या फिर आपका बच्चे का जो एनवायरनमेंट है। अगर मान लीजिए डेस्क उसको शार्प है और बच्चे को फिजिकल डिसेबिलिटी है या फिर लो विजन है, तो अगर शार्प एरियाज़ को कैसे मैनेज, मॉडिफाई करना है, वो सब बेंच से लेके स्विचेस से लेके एवरीथिंग शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स नीड। इट्स अ लॉ। देन कमिंग, हमने अब समझा कॉजेज़ क्या हैं और कैसे कैसे काम करना है। अब हम जानेंगे कि स्पेशल एजुकेशन में डिसेबिलिटी में कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिसके बारे में एज अ पेरेंट हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सेरेब्रल पाल्सी की अगर बात करूं, सेरेब्रल पाल्सी में बहुत सारे असिस्टिव डिवाइसेस आए हैं या फिर हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्स्ट इमेज में आप देखेंगे दिस इज़ अ वॉकर। वॉकर आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द चाइल्ड। पहले मैनुअल व्हीलचेयर थी, लेकिन अब हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भी है, तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और स्कूटर्स भी हैं हमारे पास, एंड ऑटोमेटिक व्हीलचेयर्स आर ऑल्सो देयर नाउ। एंड देन नीचे दीज आर क्रचेस वी कैन ऑल्सो यूज़ इन स्कूल, सोसाइटी, एनीवेयर, एंड केन्स।
सो वी हैव मल्टीपल असिस्टिव डिवाइसेस. इसके अलावा वी हैव मॉडिफाइड स्पून्स भी आते हैं हमारे पास फोक आते हैं, पेंसिल, पेन, एवरीथिंग इज़ मॉडिफाइड नाउ. तो आप अगर आपको अपने बच्चे के लिए चाहिए तो यू कैन गो एट ऑनलाइन, या फिर आप किसी भी स्टोर पे आप जाएंगे इस वाले स्टोर पे, तो आपको मॉडिफाइड स्पून्स, पेन्स और पेंसिल्स सब अवेलेबल है. देन कम्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी. जब डायग्नोस हो जाता है कि मेरे बच्चे को फिजिकल डिसेबिलिटी है, या फिर मेरे बच्चे को ऑटिज़म है, या फिर लर्निंग है, कुछ भी है, अगर आपको लगता है या डॉक्टर आपको कहता है कि आपके बच्चे को ये सर्विसेज लगेंगे, स्पेशलिस्ट आपको बोलता है, तो दिस इज़ वन ऑफ द थेरेपीज दैट अ चाइल्ड शुड हैविंग प्रॉब्लम विथ फाइन मोटर स्किल्स, डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम है, तब हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं. ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प्स इन फाइन मोटर्स. हमारे फाइन मोटर्स हैं उनमें हेल्प करता है. हमारी डे टू डे लाइफ ADL, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में हेल्प करता है. और बच्चे को अगर फीडिंग में प्रॉब्लम है, स्वॉलो नहीं कर पा रहा है, मोबिलिटी प्रॉब्लम है, चलने फिरने में प्रॉब्लम है, तो OT इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हेल्प अ चाइल्ड विद दैट. एंड इसमें एक्सरसाइजेज भी आती हैं, बहुत सारी फंक्शनल एक्टिविटीज़ आती हैं डे टू डे. एंड speech therapy is helpful for not only with speech disorders but also for autism, learning disabilities में भी आता है speech, आपका cerebral palsy में speech आता है, many others. So speech में आपके ये जो muscles हैं, oral muscles पे काम होता है. आपके अगर बच्चा फॉर एग्जांपल CP में बच्चा ड्रूलिंग करता है, या फिर बच्चा आपका फीडिंग में प्रॉब्लम आता है, बच्चे को ये लूज़ है मसल्स, वीक है मसल्स, स्पीच थेरेपिस्ट बहुत अच्छे से काम करता है इन सब चीज़ों पे. देन हमारी फील्ड में, स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में, एक सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी है. सेंसरी इंटीग्रेशन बेसिकली इज़ यूज्ड फॉर ऑटिज़म में बहुत सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी में बहुत सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, एंड मैनी अदर्स. सेंसरी बेसिकली हमारे 5 सेंसेस पे काम होता है. आपका ये देखना, टेस्ट, टच, स्मेल, इन सब, ये सब सेंसरी हैं आपका. आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. एक बच्चा था, ऑटिज़म का था बच्चा, एंड वो बच्चा कुछ भी उसको टच करना है या फिर कुछ भी उसे देखना है तो वो टेस्ट करता था, उसको यहाँ पे लगाता था. कुछ भी हो, कोई भी नई चीज़ हो या खाना हो, खाने को फैलाता था पूरे टेबल पे एंड मुंह से उसे खाता था, या पेंसिल पकड़े तो यहाँ रखना है. दीज आर सेंसरी इशूज़. ठीक है, अब उसको टेस्ट का सेंसरी इशू था. अब ये सेंसरी इश्यूज़ के लिए आपके लिए बेस्ट है आप सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी यूज़ करें. दे विल टेल यू कि आपके बच्चे को कौन से सेंसरी इश्यूज़ है. फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों को जो टैग्स होते हैं हमारे, वो बिल्कुल भी वो बर्दाश्त ही नहीं है कि वो पहन सके, वो बिल्कुल उतार देंगे उसे. ठीक है, कुछ सेंसरी इश्यूज़ होते हैं कि बहुत नॉइज़ से बहुत प्रॉब्लम है, कोई बारीक नॉइज़ हो, कोई भी नॉइज़ हो, कि वो अपने कान बंद कर लेंगे, बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे. किसी का सेंसरी इशू कपड़े से होता है, किसी का म्यूज़िक से होता है, किसी का टच से होता है. तो ये कुछ सेंसरी इश्यूज़ हैं जो हमारे सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में हेल्प करता है हमारे सेंसरी को काम डाउन करने के लिए. इसमें आपका बैलेंस कोऑर्डिनेशन आ गया, आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन आ गया. दे वर्क ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, एंड पोस्चर आ गया, ऑल ऑफ दीज. Then comes physiotherapy. Physiotherapy is not only helpful for cerebral palsy people but for Parkinson disease जिसको है, डायबिटीज़ जिसको है, या फिर जिसको किसी मतलब कोई इंजरी हो गई है, या फिर वॉकिंग प्रॉब्लम है, इन सब में फिजियोथेरेपी इज़ वेरी हेल्पफुल. फिजियोथेरेपी बेसिकली हमारी मसल टोन को मतलब रिलैक्स करने में हेल्प करता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा मस्कुलर पेन, इन सब में बहुत हेल्प करता है. स्पेसिफिकली अगर मैं सेरेब्रल पाल्सी की बात करूं, सेरेब्रल पाल्सी में बहुत सारे टाइप्स आते हैं. जैसे कि किसी बच्चे की बहुत ही लूज़ बॉडी है, ठीक है, बहुत लूज़ बॉडी है, किसी बच्चे की बहुत टाइट बॉडी है, वो टाइट रखता है अपने हाथों को, उसे स्पास्टिसिटी है, बहुत टाइट रखता है. तो ये जो टाइटनेस है, इसको कूल डाउन करने के लिए, उस मसल टोन को काम डाउन करने के लिए फिजियोथेरेपी हेल्प करता है. एंड यहाँ पे ऑल्सो फिजियोथेरेपी में हमें चलना सिखाया जाता है
कि जिसको सेरेब्रल पाल्सी है, किसी के लिम्ब प्रॉब्लम है, गेट प्रॉब्लम है। गेट इज़ वॉकिंग प्रॉब्लम। सीपी में बहुत कॉमन है कि वॉकिंग प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो उसमें हेल्प करता है फिजियोथेरेपी उसको अच्छे से मॉडिफाई करने के लिए, स्ट्रेंथ लाने के लिए पैरों में, लिम्स में। नाउ ये हमने बात की फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में और इसके मैनेजमेंट्स क्या हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्पीच डिसऑर्डर्स। स्पीकिंग स्किल्स आर स्पीच डिसऑर्डर्स एंड जब उस स्पीच में, हमारे उच्चारण में, जो हमारा वोकल का उच्चारण है उसमें जब दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तब हमको स्पीच डिसऑर्डर होता है। अब स्पीच के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ 4 टाइप्स के बारे में बात करूँगी। दीज आर आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, फ्लुएंसी, डिस्ट्राथ्रिया एंड वॉइस डिसऑर्डर। आर्टिकुलेशन के और भी सब टाइप्स हैं दैट विल बी टॉकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ आर्टिकुलेशन? हम जब एक स्पीच, एक साउंड को नहीं प्रोनाउंस कर पाते हैं अच्छे से, तब शायद हमें आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम है। आर्टिकुलेशन, आई विल टेल यू एग्जांपल है। जैसे कि एक बच्चे ने बोला आई सॉ स्कूटर, मैंने एक स्कूटर देखा। अब उसमें एक जो सब्स्टिट्यूशन वाला प्रॉब्लम अगर बच्चे को होगा तो बच्चा बोलेगा आई टॉ स्कूटर टोइंग। ये जो ट उसने लगाया, उसने वर्ड को रिप्लेस कर दिया, एक लेटर को रिप्लेस कर दिया उसने। वही जब बच्चे को एक वर्ड खाने की अगर प्रॉब्लम होगी तो वो बोलेगा आई ऑ स्कूटर कोइंग। तो ये जो उसने एस भी नहीं है, टी भी नहीं है, तो उसने एक लेटर को खा लिया, उसे हम कहते हैं ओमिशन, खा लिया उसने। देन डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में बच्चा रुक रुक के बोलता है, वो अपने वर्ड को पूरा फॉर्म नहीं कर पाता है। आई सॉ ट गोइंग, ठीक है। देन एडिशन में होता है कि एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा दिया हमने, आई सॉ स्कूटर की जगह आई सॉ स्कूटर गोइंग। तो उसने एक वर्ड, एक लेटर एक्स्ट्रा लगा दिया। ये इसको अगर हम एक साथ बोले तो इसका सोडा होता है मिस आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम। तो जब बच्चे को इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम आती है तो समझ जाइए आपके बच्चे को आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है, जिसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट काम करते हैं। देन कम्स फ्लुएंसी। अब फ्लुएंसी होता है जहाँ पे आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो बोलते हैं मैं चाहता हूँ की। ये जो वो स्ट्रेच कर रहे हैं उस बात को, उस रिदम को, उसको हम क्लटरिंग कहते हैं। वो फ्लुएंसी नहीं आ पा रही है उस शब्द को, मैं चाहता हूँ कि मैं, ये जो मैं का जो ये खिंचाव है उसको हम क्लटरिंग कहते हैं। फ्लुएंसी डिसऑर्डर होता है। डिस्ट्राथ्रिया बेसिकली हमारा जब ओरल मसल वीक होता है और हमारे स्पीच का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है, लिप्स, टंग और टीथ का, तब हमें ये प्रॉब्लम आता है। इसमें ड्रूलिंग भी आती है, जो हम सेरेब्रल पाल्सी में भी देखते हैं। वो ड्रूलिंग बिकॉज ऑफ वीक मसल्स की वजह से होता है। देन कम्स वॉइस डिसऑर्डर। वॉइस डिसऑर्डर के टाइप्स होते हैं कि पिच नहीं समझ पाता है बच्चा, किस पिच में बोलना है, कितना तेज़ बोलना है, कम बोलना है, या क्वालिटी कैसे रखनी है अपनी वॉइस की। वो जो कोऑर्डिनेशन है साउंड्स का, वो अगर मैनेज ना कर पाए बच्चा तो उसको वॉइस डिसऑर्डर है। अब स्पीच एंड लैंग्वेज, स्पेसिफिकली स्पीच के जो कॉजेज़ हैं, या तो हमने बचपन में, आप देखते हो कि हम बचपन में बच्चों से बात करते हैं, आप क्या खाओगे, आप तो रहे हो, आप तो रहे हो। ये जो हम बात करते हैं बच्चे से, हमें नहीं करना है ये। हम बच्चे से नॉर्मली भी बात करेंगे, आप सो रहे हो, आप क्या खाओगे। ये हमारा जो बात करने का तरीका है, हमारा जो एक्सेंट है, इसको हमें थोड़ा चेंज करना है, बिकॉज ये बच्चा पकड़ लेता है। अगर हम नॉर्मली भी बात करेंगे बच्चे से, आप क्या खाओगे, तो बच्चा तब भी समझेगा। हमको उसको अपने आर्टिकुलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से, फॉल्टी लर्निंग की वजह से बच्चे को ये सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। और मान लीजिए बाय बर्थ अगर बच्चे को डिफॉर्मिटी है माउथ, लिप, टीथ, टंग में, तब भी हमको ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। या फिर ब्रेन डैमेज हुआ हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी कारण, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी वजह से भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है, लैंग्वेज इफेक्ट हो सकता है। देन वोकल कॉर्ड डैमेज हुआ हो किसी रीज़न की वजह से,
then can also these things can happen. अब मैं आपको थोड़े से रेमेडीज़ बताऊंगी कि जैसे ही आपको पता चले आपको इमीडिएटली स्पीच थेरेपिस्ट के पास तो जाना ही जाना है, कोई उस पर ऑप्शन नहीं है. लेकिन आप घर में क्या कर सकते हैं? घर में आप फॉर एग्जांपल बच्चों को र में बहुत प्रॉब्लम होती है. र इज़ अ डिफ़िकल्ट साउंड, क्योंकि र में हम टंग को ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे टच करके हम बोल रहे हैं. तो र में बहुत प्रॉब्लम होती है. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मुझे याद है मैं जब तक स्कूल में थी, मुझे बाड़ा बोलने में बहुत प्रॉब्लम रहती थी. र बाड़ा, मैं हमेशा बाड़ा बोल देती थी फ्लुएंसी में. तो जो र का कॉन्सेप्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है. इसको भी थोड़ा सा हमको इस पर काम करना चाहिए अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे में प्रॉब्लम है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. अगर मान लीजिए आपके बच्चे को जी में प्रॉब्लम है कि वो जी नहीं बोल पा रहा है ढंग से, उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो हम कुछ चीज़ें बोल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक स्टोरी हम उन्हें बोली या 2 लाइन हम उन्हें रोज़ सिखाएं. जैसे कि डॉग ड्रैंक वाटर आउट ऑफ द जग. ये ग है, जो ये ग का जो बेस साउंड है उसको थोड़ा एम्फेसाइज करके बोलना है हमको. ग, या फिर अगर आप लिख के भी सिखा रहे हैं तो जो पीछे का जी है उसको कैपिटल लिख दीजिए. ग. एंड फील asleep ऑन द ग्राउंड. तो जो ग का ग्राउंड है तो उस ग्राउंड को भी, ग के ग्राउंड को एम्फेसाइज कीजिए. इसी तरीके से और भी आप लेटर्स में अगर आपको लग रहा है कि साउंड प्रॉब्लम आ रहा है तो उस पर्टिकुलर लेटर पे थोड़ा एम्फेसिस देके रोज़ डेली कॉन्वर्सेशन के साथ सिखाइए. ये कुछ टिप्स हैं जो आप घर पे कर सकते हैं अदरवाइज. और बच्चे को बार बार टोकना नहीं है कि अच्छा नहीं आपने गलत बोला, रेन नहीं, रेन है, रेन, र. बार बार उसे ये चीज़ बोलनी नहीं है कि आपने गलत बोला है. क्या बोला? रेन, नहीं, रेन. ये उसे कंफ्यूज नहीं करना है ऐसे करके. उसको मौका देना है. उसने गलती करी, उसे बोलना है अच्छा यू मीन टू से रेन, ओके, बस दैट्स इट. इतना ही उसको टोकना है, क्योंकि उससे उसका सेल्फ एस्टीम डाउन होगा कि नहीं मम्मा ने मुझे मतलब बोला कि अच्छा नहीं, मुझे ढंग से बोलना है. तो वो कॉन्शियसनेस आ जाएगा और वो बच्चा डर के मारे वो डर मतलब वो बोलेगा ही नहीं, डर में ही बोलेगा. तो देन एम्फसाइज ऑन साउंड्स वाइल रीडिंग स्टोरी बुक्स. मुझे याद है कि मेरी नानी और दादी को मैं अगर याद करूं तो मैं इसलिए याद करती हूँ, एक तो वो मुझे मेरा मनपसंद खाना देती थी एंड सेकेंडली मुझे वो स्टोरी सुनाती थी. लेकिन आजकल आई थिंक हमारे पास हम इतने बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में, हमारे जॉब्स में, कि हम क्वालिटी टाइम देना भूल गए हैं अपने बच्चों को. क्वालिटी टाइम सिर्फ बच्चे का रहने के साथ नहीं होता है, बच्चे के साथ टाइम बिताने से होता है, क्वालिटी टाइम बिताने से होता है. आप यकीन मानिए एज पेरेंट्स 5 मिनट सिर्फ सोने से पहले आप अपने बच्चे को दीजिए. सोने से पहले उनसे पूछिए आपने क्या किया पूरे दिन, ठीक है. उसमें ही कॉन्वर्सेशन हो जाता है. आप उन्हें स्टोरी सुनाइए, मोरल स्टोरीज सुनाइए. मोरल स्टोरीज़ में एम्फेसाइज करिए लेटर्स पे, बातों से, क्योंकि स्पीच इज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग स्किल्स. जितना बात करेगा बच्चा उतना ही उसके साउंड्स और उसके प्रोनाउंसिएशन क्लियर रहेंगे. सेकेंडली, बूस्ट योर चाइल्ड सेल्फ एस्टीम. उसको एक एनर्जी दीजिए कि बेटा आई नो यू कैन डू इट. आपसे गलती होगी, कोई बात नहीं. एक जो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है उसे बिल्टअप करना बहुत ज़रूरी है. हमेशा उसे टोकना कि, और उसको अपनी लैंग्वेज को भी फोकस करिए कि आप जब अपनी हस्बैंड या वाइफ से बात करते हैं बच्चा सब सुनता है. आप जैसे अपने फैमिली मेम्बर को ट्रीट करेंगे, आपका बच्चा भी बाहर या फिर उसी फैमिली मेम्बर को वैसा ही ट्रीट करेगा. सो थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप अपने अंदर पेरेंटिंग स्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई करिए, अपने वे ऑफ टॉक को थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, सो दैट बच्चा भी कुछ अच्छा ही सीखे. बी अ गुड रोल मॉडल. जैसे मैंने कहा कि आप जैसा बिहेव करेंगे बाकी के साथ या किसी और के साथ, बच्चा भी वही सीखेगा. यूजुअली मदर फ़ोन पे बात करते करते कुछ झूठ बोलते हैं किसी से, फॉर एग्जांपल फ़ोन पे, तो बच्चा क्या सीखता है कि मम्मा झूठ बोलते हैं, मतलब झूठ बोलना इज़ ओके, इट्स फाइन. जब आप बच्चे को बोलते हो किसी बात पे कि तुमने झूठ क्यों बोला, तो बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाएगा कि झूठ बोलना तो अच्छी बात है ना, मतलब मम्मा भी तो झूठ बोलती ही हैं, मैंने तो देखा है उन्हें, तो इसमें बिग डील क्या है. आप जैसा बिहेव कर रहे हैं बच्चा आपको एज इट इज़ कॉपी कर रहा है आपके बिहेवियर को,
और वही इम्प्लाई करता है बाहर। तो आपको भी समवेयर अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है एंड मेक अ कम्युनिकेशन अ प्रायोरिटी। जैसे बच्चा आए, अगर मदर हाउस मेकर हैं तो कोशिश करिए शाम को अपने बच्चे को बाहर पार्क में ले जाइए, नेचर से थोड़ा सा रूबरू कराइए, थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, नंगे पैर घास में जाइए, सेंसेस उनके स्ट्रांग होंगे, बात करिए, लैंग्वेज भी स्ट्रांग होगा, बॉन्ड भी अच्छा होगा और बच्चे का जो वोकैबलरी है बात करने से वो भी स्ट्रांग होगी बच्चे की। After talking about everything, we have many policies, schemes, act about disability for children with special needs. लेकिन ये जो डिसेबिलिटी का टॉपिक है ये शुरू कहाँ से हुआ, इसका ये किसने कहा कि ये डिसेबिलिटी के बारे में जो इनका एजुकेशन है उन पे एम्फसाइज दिया जाए, ये शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ इंटरनेशनली। सबसे पहले UDHR ने 48 में कहा कि एजुकेशन फॉर ऑल होना चाहिए, सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए, चाहे वो डिसेबिलिटी हो या कास्ट हो, रिलीजन हो, सबके लिए इक्वल एजुकेशन होना चाहिए। तब 1990 में वर्ल्ड डिक्लेरेशन ने कहा कि यस, डिसेबिलिटी अगर है बच्चे को स्पेशल अटेंशन दी जानी चाहिए, इक्वल एक्सेस देना चाहिए उस बच्चे को। जब ये दो पॉलिसीज़ आई तब वहाँ से RCI क्रिएट हुआ, वहाँ से PWD 95 क्रिएट हुआ, वहीं से नेशनल एक्ट 99 क्रिएट हुआ इंडिया में। और इन तीनों ने एम्फेसिस दी एजुकेशन फॉर ऑल पे, डिसेबिलिटी के लिए कौन कौन से लॉज आने चाहिए उस सब पे, जो हम अब आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। हमने समझा डिसेबिलिटी एवरीथिंग, लेकिन डिसेबिलिटी को इंक्लूड भी तो करना है। अब हमने बोल दिया कि सिर्फ डिसेबिलिटी है उस बच्चे को, कोई बात नहीं, लेकिन उसको हमें सोसाइटी में लाना है, सबके साथ बिठाना है उस चेयर पे। वो कैसे करें? इंक्लूजन के साथ। इंक्लूजन 94 में सलमान का एक पॉलिसी आई थी जहाँ पे इंडिया ने साइन किया था बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ कि यस, हम डिसेबल चिल्ड्रन को भी इंक्लूड करेंगे, और उस जो हम इंक्लूड कर रहे हैं उनको बाकी जनरल स्टूडेंट्स के साथ या सोसाइटी के साथ, उसका नाम होगा इंक्लूजन। वहाँ से इंक्लूजन आया जो कि हम आज तक सुनते आ रहे हैं। इंक्लूजन के साथ जब इंक्लूजन आया तब इंडिया में बहुत सारी पॉलिसीज़ आई फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। सबसे पहली पॉलिसी जो आई थी वो थी 64 में कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने कहा कि जो एजुकेशन है वो सबके लिए सेम होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। द नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 68 में जब आई थी, उन्होंने कहा कि ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन मॉडल बनाएंगे जहाँ पे हम स्पेशल स्कूल्स भी होंगे और रेगुलर स्कूल्स भी होंगे। फिर 86 में फिर उन्होंने कहा कि ये इंटीग्रेटेड मॉडल होगा जहाँ पर स्पेशल स्कूल रेगुलर स्कूल स्पेशल स्कूल के अंदर आएगा, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होगा लेकिन वो एक ही एरिया में इन सब का एजुकेशन होगा। फिर प्लान ऑफ एक्शन में मेन स्ट्रीमिंग आया कि इनको प्रिपेयर करेंगे। एक स्कूल के अंदर 2 डिपार्टमेंट बन गए हैं, अब यहाँ पे स्पेशल बच्चे जहाँ पे हैं उनको हम प्रिपेयर करेंगे, जो जिनकी कैपेबिलिटीज़ हैं जनरल स्टूडेंट के साथ के कोप करने के लिए उन्हें प्रिपेयर किया गया प्लान ऑफ एक्शन के थ्रू। फिर RCI एक्ट आया 1992। जब हम इतनी सारी बातें हो गई कि डिसेबिलिटी है कुछ लोगों में, उनकी पढ़ाई कैसे की जाए, तब RCI एक्ट आया, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जहाँ पे 16 कैटेगरीज ऑफ स्पेशलिस्ट थी, जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया गया फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। जैसे कि मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, RCI सर्टिफाइड हूँ। RCI कोर्सेज देता है, जैसे कि हम टीचर बनते हैं वैसे स्पेशल एजुकेटर बनते हैं, तो RCI ने वो स्पेशल एजुकेटर्स क्रिएट करे, आपके हेयरिंग इम्पेयरमेंट के हेयर स्पेशलिस्ट केयर क्रिएट करे, स्पीच थेरेपिस्ट क्रिएट करे RCI के थ्रू। फिर आपका आया डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी। इन्होंने भी इंटीग्रेटेड मॉडल के बारे में बात की कि सबको एक साथ पढ़ाना है लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। बट टर्निंग पॉइंट आया 2000 में जब सर्व शिक्षा अभियान आया, जहाँ पे 0 रिजेक्शन पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के हिसाब से आप किसी भी बच्चे को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, स्पेशली टॉकिंग अबाउट स्कूल्स किसी भी बच्चे को रिजेक्ट नहीं कर सकता है इन टर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी, कास्ट, रिलीजन
एंड कलर, सेक्स, एवरीथिंग। फिर 2009 में RTI एक्ट आया, जिन्होंने कहा कि हम बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी, और ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी टिल द एज ऑफ 18 की उम्र तक बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी मैंडेटरी है। देन उन्होंने ये भी कहा कि एक तो मल्टीपल डिसेबिलिटी एंड सिवियर डिसेबिलिटी दोनों को होम बेस्ड एजुकेशन भी मिलनी चाहिए। देन फाइनली हम RPWD एक्ट 2016 की बात करें। RPW एक्ट इज राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016। इससे पहले 1995 में PWD एक्ट आया था, जिन्होंने सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करी थी, उनके लिए हमें क्या काम करना है, पॉलिसीज़ क्या है, रिजर्वेशंस क्या हैं। लेकिन जब 2016 में एक रिवाइज्ड पॉलिसी आई, उन्होंने 21 डिसेबिलिटीज़ को, मतलब 14 मोर डिसेबिलिटीज़ ऐड करी और उनके बारे में कहा कि ये हमारी डिसेबिलिटीज़ को इतनी रिजर्वेशंस मिलेंगी, इतना इतना उनको स्कीम्स मिलेंगी, जो हम आगे पढ़ेंगे RPWD एक्ट के बारे में। फाइनली 2020 में आप सबको पता है एक नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क आया, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में बात करी, बट उन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन को मैंडेट किया कि इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम किया जाए और अच्छे से। सो दीज आर सम पॉलिसीज़ जो हमारे इंडिया में आए हैं फ्रॉम 64 टू 2020, एंड और ना जाने और कितनी अच्छी पॉलिसीज़ आने वाली हैं फॉर द अपकमिंग जनरेशन। एंड दिस इज़ अ पेज, ये नेशनल ट्रस्ट एक्ट का एक पेज है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के कोलैबोरेशन से क्रिएट हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स, पॉलिसीज़ हैं बच्चों के लिए। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर स्कीम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे स्कीम्स बहुत सारे, विकास, समर्थ और सहयोगी, ज्ञान, प्रेरणा, संभव, दिशा। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉलिसी, एक स्कीम में जाती हूँ, दिशा, यह है अर्ली इंटरवेंशन स्कूल रेडीनेस स्कीम। स्कूल के लिए रेडी करते हैं बच्चे को अप टू 10 ईयर्स तक। ये बच्चा इस स्कीम में एनरोल कर सकता है। तो मैं इसको रीड मोर पे जाती हूँ, तो यहाँ पे आपको इस स्कीम के बारे में पता चलेगा, स्टाफ कितना है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आप इसको कैसे फॉर्म को भर सकते हो, ये सारी स्कीम्स हैं, आप कैसे एनरोल कर सकते हो, आपको पूरी डिटेल मिलेगी स्कीम के बारे में। इट्स अ गवर्नमेंट स्कीम, एंड ये सब अबाउट है इसका। और इस डे केयर में होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये 8 to 6 o'clock तक ये डे केयर चलता है, एंड मैनी मोर थिंग्स आर देयर इन बिटवीन। उसके बाद मैं समर्थ में जाती हूँ। ये एक स्कीम है, समर्थ में भी वही आपको मिलेगा, कैसे इनरोल किया जाए। और यस, तो ये ग्रुप होम स्कीम है। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, आपको प्रेफरेबल आपको स्कीम चाहिए, आप उसके बारे में क्लिक करिए, उसके बारे में पढ़िए कि मेरे बच्चे के लिए बेनिफिट है नहीं है। इट विल हेल्प यू। एंड वापस आई एम गोइंग बैक टू होम। ये पूरा एंटायर पेज है। यहाँ पे आपको लोकल लेवल गार्डियनशिप एक्ट मिलेगा। जैसे पेरेंट्स की उम्र बहुत ज़्यादा है और पता नहीं है कि पीछे से कौन ध्यान रखेगा इसका, तो ये आपको एक एक्ट है जहाँ पे आप गवर्नमेंट के थ्रू कोई गार्डियनशिप हायर कर सकते हैं, और दे विल हेल्प इंस्टेड आपके प्रेजेंस में, दे विल हेल्प यू in terms of property, in terms of care, everything. Then यहाँ पर ये आपका लोकल लेवल कमेटी आ गया। फिर आपका ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं और असिस्टिव डिवाइसेस हैं, ट्रेंड केयर गिवर्स, आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ये बहुत सारे आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। अब एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस, जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि हमारे पास बहुत सारे असिस्टिव डिवाइसेस भी हैं, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है कि ये डिवाइस किस लिए यूज़ किया जाता है, और
आप समझ पाएंगे कि मेरे बच्चे के लिए कौन सा प्रेफरेबल डिवाइस है। यहाँ पर प्रॉपर आपको एड्रेस दिया है और इन्होंने नंबर भी दिया है जहाँ पे आप इनका लिंक, ये संभव सेंटर का लिंक है जहाँ आप चेक कर सकते हैं और आपको असिस्टिव डिवाइस मिल सकता है। देन ये डिटेल्स पे मैं क्लिक कर रही हूँ जहाँ पे मुझे बहुत सारी डिटेल्स मिल रही हैं अबाउट असिस्टिव डिवाइसेस। ये CD प्लेयर है, ये बच्चों के लिए क्लासमेट रीडर है, दीज आर लार्ज प्रिंट कीबोर्ड एंड मैनी थिंग्स आर देयर इन होल। आप इनको कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द नंबर, मेल ID भी है, आप बुक कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पे रजिस्टर भी कर सकते हैं अपने आप को एंड मल्टीपल फैसिलिटीज़ आर हेयर। ये है RPWD एक्ट जिसके बारे में हमने बात करी, जहाँ पे 21 डिसेबिलिटीज़ को मेंशन किया है ऑफ RPWD 2016। Ma'am, can I ask a question? यस मैम। Sorry for disrupting in between, यस ma'am. मैम। मैं जानना चाहती थी ना, जैसे कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, यहाँ पे देयर इज प्रोविजन कि हम कैसे फंड्स ले सकते हैं अगर हमें अपने कॉलेज में एक स्पेशल नीड सेंटर करना हो, तो क्या कोई प्रोविजंस है कि हम उनसे फंडिंग या प्रोजेक्ट्स भेज सकते हैं जिसपे हमें फंड ग्रांट हो सके ताकि हम यहाँ पे रन, क्योंकि हमारे कॉलेज में आसपास के एरिया में कोई भी स्पेशल नीड एजुकेशन का सेंटर नहीं है। अगर यहाँ पे कम्युनिटी प्लेस जैसे यहाँ से अप्रोक्सीमेट मोर देन 5000 पीपल रहते हैं यूनिवर्सिटी के प्रीमाइसेस में, बट अगर कुछ प्रॉब्लम होता है दे हैव टू गो टू हल्द्वानी 30 ओके फ्रॉम देयर, या फिर रुद्रपुर 20 किलोमीटर्स, तो उनको अप्रोच में नहीं है, तो मेनी टाइम से यहाँ के बच्चों में प्रॉब्लम्स है, वो पेरेंट्स अप्रोच नहीं कर पाते, तो फिर वो रह जाते हैं ऐसे ही बच्चे कम्युनिटी में। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, अप्रोक्सीमेट 10 to 15 तो मैंने ही हम लोगों ने देख रखा है, उन्हें हमारी रीच में है, जिनके पेरेंट्स एक्सेस नहीं कर पाते हैं इन Alright. सुविधाओं को। मैम तो मेरा मतलब ये पूछना था कि हम कैसे गवर्नमेंट की जो ये फैसिलिटीज हैं, क्या फंडिंग मोड में है जो हम अपने यहाँ पे अगर स्पेशल नीड डे केयर सेंटर रन करना चाहें, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस एंड फैसिलिटीज अवेलेबल है? दैट आई कांट प्रॉमिस यू कि ऐसा है कि नहीं है, बट आई टेल यू, ये जो पर्टिकुलर स्कीम मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे स्लाइड पे, यहाँ पे एक ऑप्शन है, आई बिलीव यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल सेंटर्स आपको दिख जाएंगे अलग अलग सिटीज़ के लिए, अलग स्टेट्स के, और आप वहाँ पे अपना नियर बाय भी सेंटर ढूंढ सकते हैं। मैं यहाँ पे मैंने शायद रिकॉर्ड में नहीं मेंशन करा है, बट मल्टीपल सेंटर्स आर देयर। नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन था ना, जैसे आप लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, कौन सी आइडिया आई थी? गेट इट, आई गेट तो मैं ये जानती चाहती थी कि जैसे अगर हम अपने यहाँ पे कुछ शुरू करना चाहें तो क्या कोई फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट के साइड से कि अपने यहाँ पे कुछ, क्योंकि हमें एजुकेटर हायर करना होगा, उसके बिना तो हम एजुकेट नहीं करते, वी आर नॉट एक्सपर्ट टू दैट। से आप एक्सपर्ट हैं you तो हम have to find out that I can't promise you by saying हाँ। ओके ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। Yes. हाँ, वो मतलब तुझे एक्सेप्ट नहीं करना शायद। Sorry. Alright. समझिए, अपना फोन म्यूट करो बेटा फॉर द डिस्ट्रक्शन। Alright. Continue, So ma'am. यहाँ पे है RPWD एक्ट। Alright. तो इस एक्ट में इन्होंने 21 डिसेबिलिटीज़ मिक्सअप करी हैं। इन्होंने कहा है कि ये ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जिसके लिए कुछ रिजर्वेशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये रिजर्वेशन हाल ही में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ पे अब हमें एयर फ्लाइट के लिए भी रिजर्वेशंस हैं फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, एंड एजुकेशन में रिजर्वेशंस हैं, हायर स्टडीज़ के लिए रिजर्वेशंस हैं, एंड 3 to 4% रिजर्वेशन है इन एजुकेशन। यस, सो इन्होंने कहा है कि आपको बेनिफिट मिलेगा, एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, और 6 से 18 साल की उम्र तक आपको राइट है फ्री एजुकेशन का, एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। आपको 5% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कॉलेज हो गया, 5% रिजर्वेशन आपको मिलेगा। 4% रिजर्वेशन है फॉर गवर्नमेंट जॉब्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 4% रिजर्वेशन मिलेगा, एंड 3% इज़ फॉर एजुकेशन।
and otherwise also right to free education we have. And these are some schemes for jobs. हम जॉब की बात करते हैं कि चलो ये तो हो गया, अब लेकिन जॉब भी तो करने के कोई चांसेस हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, ये सब कुछ सवाल एक पेरेंट के मन में रहते हैं. तो उसके लिए हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं. वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे बोला है कि नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वो प्रिपेयर करते हैं बच्चों को उनके स्किलफुल लर्निंग के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए. दीनदयाल स्किल ट्रेनिंग थ्रू इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट है. आपका ISPD है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर हैंडीकैप्ड इन इंडिया. दीज आर सम सेंटर्स, बेसिक सेंटर्स जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स सिवेरिटी. फॉर एग्जांपल हम कोई डिलीवरी वो नहीं होता आपका, मैकडॉनल्ड्स होता है, वहाँ पे आप बच्चा जा सकता है उनकी कैपेबिलिटीज़ के साथ. फ्लावर्स मेकिंग होते हैं, बहुत सारे NGOs होते हैं जो ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को हायर करते हैं. आप देखेंगे बहुत सारे एग्जीबिशंस भी लगे होते हैं जहाँ पर बच्चों की स्किलफुल लर्निंग पोर्ट्रे होती है. सो दीज आर समथिंग दैट यू कैन गूगल इट, फाइंड आउट, एंड इन सब इंस्टीट्यूट के थ्रू आप जुड़ सकते हैं. दैट पेज मैंने जो आपको दिखाया नेशनल ट्रस्ट का, वहाँ पे अपने आप को लॉग इन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, एंड यू कैन आप वहाँ से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. Thank you